खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट नेशनल में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों में भाजपा की सफलता से उत्साह है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में भाजपा का समर्थन बढ़ेगा। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव हार चुकी है भाजपा। कर्नाटक के उपचुनावों में भी संतोषजनक प्रदर्शन नहीं था। दोनों राज्यों में कार्यकर्ताओं के सक्रिय करने में भाजपा जुटी हुई है। 1-2 हफ्तों में कर्नाटक का दौरा शुरू करेंगे प्रभारी अरुण सिंह का एक दिन हर जिले में रहने का भी यहाँ पर कार्यक्रम है। तो इस 5 में से 4 राज्यों में जीत के बाद उत्साहित यहाँ भाजपा है, क्योंकि इसी साल गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में भी विधानसभा चुनाव होने और ऐसे में भाजपा का समर्थन बढ़ेगा। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव हार चुकी है भाजपा। इधर कर्नाटक की बात करें तो वहां पर भी उपचुनाव में संतोषजनक प्रदर्शन नहीं था भाजपा का। दोनों राज्यों में कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में भाजपा जुटी हुई है। इधर आम आदमी पार्टी का बढ़ता आत्मविश्वास। अब बंगाल में किस्मत आजमाएगी आम आदमी पार्टी। बंगाल में 2023 का पंचायत चुनाव लड़ेगी आप। पार्टी आलाकमान के निर्देश पर अभियान शुरू किया गया है। स्थानीय इकाई ने पहले ही अपना अभियान शुरू कर दिया था। आम आदमी पार्टी ने 13 मार्च को कोलकाता में एक रैली की है। तो अब पंजाब की बड़ी जीत के बाद आम आदमी पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अब बंगाल में किस्मत आजमाएगी आम आदमी पार्टी। बंगाल में 2023 का पंचायत चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ने जा रही है और पार्टी आलाकमान के निर्देश पर ही अभियान शुरू हुआ है। स्थानीय इकाई ने पहले ही अपना अभियान शुरू कर दिया है। आपने 13 मार्च को कोलकाता में एक रैली की। स्थायी इकाई ने पहले ही अपना अभियान शुरू कर दिया है। पंचायत चुनाव अब पश्चिम बंगाल में लड़ने जा रहे आम आदमी पार्टी और इसे लेकर 13 मार्च को कोलकाता में एक रैली भी आपने की थी। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जेएलएफ का आज आखिरी दिन है। जेएलएफ में राजस्थान की भव्यता पर फोकस है। आखिरी सेशन में 400 स्पीकर्स शामिल हुए हैं। सीधी तस्वीर। Sadly, because 12 out of 15 state Congress working committees voted for Sardar Patel. Out of the 3, they did not vote for Nehru. It was Mahatma Gandhi who told Sardar Patel to withdraw his nomination, and Nehru was imposed. So that had nothing to do with consensus. And when you talk about another contention, yes, when there are choices, in 1950, and Nehru was not a generous person, but he was very charitable with India, not with himself. In 1950, when USA made a proposition to offer United Nations Security Council seat to India, Nehru refused. In 1955, when USSR, erstwhile USSR made a similar offer, he refused. You made your point, all right? So, you're a historian. Is this accurate? Yes and no. And the okay, US, I don't know. Let's discuss the no. Why isn't it accurate? Well, because I don't know about the USSR, but there was a US proposal that India and Nehru said no. Nehru said no, and so did Vijay Lakshmi Okay, Pandit. fair enough. So we've got some support here. My history is. I know this side is itching to rebut that. Hang on. I will just add on one part. It's on. It's on. Just to say this, that India refused, rather Nehruji refused. I don't think we can just take Shazia and Mike. We can't hear you. It was ultimately given to China. Okay. But for this position, India would have been the first Asian nuclear power that existed. So forget what Nehruji did thereafter. It is only 1998 that Pokhran explosion was done, making India stand in that place. 62 war happened because of this. 65 war happened because of this. We call No, that. Nehru lobbied for China. Shazia, you can't make a second speech. The historians on this side are looking very agitated. Professor. Yeah. I would like to quote Sardar Vallabhbhai Patel first of all. In 1949 he wrote that Nehru is the leader of our legions, commander of our legions, and Gandhiji, Bapu, made him our leader, and history has proved that Bapu was absolutely right. This is Sardar Vallabhbhai Patel in 1949. On 15th of December 1950, Sardar passed away. On 5th of December, he told his trusted lieutenant and a critic of Nehru, Mr. V.N. Gadgil, he told him that make me a promise. I am dying. I am not going to survive long. Yeah. So make me a promise. Gadgil said, what promise you want from me? Come what may, you will not leave Panditji. This is Sardar Vallabhbhai Patel. So yes, and Sardar Vallabhbhai Patel also made it very clear in a letter written to Nehru that there are people who play up our differences for their petty ends. I am quoting Sardar verbatim.
There are people who play our differences for their petty ends, but we, both you and I, have learned to recognize, respect, and accommodate each other's viewpoints. That is how a consensual government is run, not by the writ of a dictator. All right. So the other point I want to make, Veer, Okay. the other point, very briefly. परमाणु बम मेरी जेब में रखा कलम नहीं है कि मैं निकाल के दिखा दूंगा. नहीं बता. So you do a peaceful nuclear explosion in 1974. You do a nuclear explosion in 1974. You declare your nuclear arsenal in 1998. The preparation had to start years before, which was done by Nehru in 1946. Third point I want to make, and that's all. Okay. Third point I want to make. This China, the Security Council seat. Nehru replied to this question in Parliament and reminded the parliamentarians that actually in international law, the seat vacated by the mainland China should go to mainland China, which you like or do not like is being ruled by Communist Party. You cannot deny Security Council seat because the party of your choice is not ruling. Why? Nehru, just a minute. Nehru. चले बढ़ते आगे। शिवराज सरकार की बड़ी घोषणा, मध्य प्रदेश में माफ होंगे कोविड काल के बिजली बिल, डिफॉल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विधानसभा में एक घोषणा की। सीएम शिवराज ने कहा, जिन लोगों ने बिलों का भुगतान कर दिया है उनकी राशि अगले बिलों में समायोजित की जाएगी। इससे प्रदेश के 48 लाख बिजली उपभोक्ताओं को फायदा होगा। तो ये बड़ी घोषणा शिवराज सरकार ने की है। मध्य प्रदेश में माफ होंगे कोविड काल के बिजली बिल, डिफॉल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विधानसभा में ये बेहद अहम घोषणा की। सीएम शिवराज ने कहा कि जिन लोगों ने बिलों का भुगतान कर दिया है उनकी राशि अगले बिलों में समायोजित की जाएगी। इससे प्रदेश के 48 लाख बिजली उपभोक्ताओं को फायदा होगा। अखिलेश यादव को अब तय करना होगा आगे का रास्ता। क्या वे वापस दिल्ली की राह पकड़ेंगे या उत्तर प्रदेश में मोर्चा संभालेंगे? यूपी में विपक्ष से सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश ने लोकसभा उपचुनाव जीतकर की थी सियासत की शुरुआत। 2000 में कन्नौज से लोकसभा उपचुनाव जीता था अखिलेश ने। ये वो दौर था जब समाजवादी पार्टी यूपी में अपने उफान पर थी। 2012 में सपा सत्ता में आई और अखिलेश पहली बार सीएम बने। हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में पहली बार लड़ा विधानसभा का चुनाव। अखिलेश मैनपुरी की करहल सीट से आसानी से जीत भी गए। अब अखिलेश यादव लोकसभा और विधानसभा दोनों ही जगह सदस्य हैं, लेकिन अब उन्हें जल्द ही देना होगा इनमें से किसी एक सदस्यता से इस्तीफा। अब सवाल ये है कि वो किसे चुनते हैं, यूपी को या दिल्ली को? ये बेहद अहम सवाल है कि आखिर वो कौन सी राह पकड़ते हैं, राज्य में उत्तर प्रदेश में सक्रिय रहते हैं या फिर दिल्ली की, क्योंकि उनके पास 2 पद है। लोकसभा में भी वो सदस्य रहे और अब विधानसभा का चुनाव भी अपनी सीट से बहुत ही आसानी से करहल से उन्होंने जीत दर्ज की। अब लोकसभा और विधानसभा दोनों की जगह सदस्य हैं, लेकिन अब उन्हें जल्द ही इनमें से किसी एक सदस्यता से इस्तीफा देना होगा। अमृतसर के 16 पार्षद आम आदमी पार्टी में शामिल। 16 फरवरी आप में शामिल हुए थे महापौर करमजीत सिंह रिंटू। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने स्वागत किया था। अमृतसर नगर निगम की कुल 85 में से 65 सीटें कांग्रेस ने जीती। विधानसभा चुनाव के बाद पार्षदों के पाला बदलने का सिलसिला भी शुरू हुआ। आम आदमी पार्टी में अब कांग्रेस के पार्षद जा रहे हैं। कांग्रेस का दामन छोड़कर आम आदमी पार्टी पर भरोसा ये पार्षद जता रहे हैं। अमृतसर के 16 पार्षद आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। 16 फरवरी आप में शामिल हुए थे महापौर करमजीत सिंह रिंटू। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने उनका स्वागत किया था। और अमृतसर नगर निगम की कुल 85 में से 65 सीटें हैं जो कांग्रेस ने जीती। विधानसभा चुनाव के बाद पार्षदों के पाला बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी में अब जा रहे हैं कांग्रेस के पार्षद। बिहार विधानसभा में तू मैं विधानसभा स्पीकर से भिड़ गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लखीसराय की घटना को लेकर हुए नीतीश विजय सिन्हा के बीच कहासुनी। नीतीश ने कहा, सदन ऐसे नहीं चलेगा, ये संविधान से ही चलेगा। कुछ दिन पहले लखीसराय में सरस्वती पूजा के दौरान घटना हुई थी। पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर एक शख्स को गिरफ्तार किया था। कथित तौर पर गिरफ्तार व्यक्ति स्पीकर विजय सिन्हा का करीबी था और इसे लेकर ही दोनों के बीच में सदन के अंदर तू मैं हुई। बिहार विधानसभा का ये वाकया जो विधानसभा स्पीकर से भिड़ गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लखीसराय की घटना को लेकर नीतीश और विजय सिन्हा के बीच कहासुनी हो गई सदन के अंदर। नीतीश ने कहा कि सदन ऐसे नहीं चलेगा, ये संविधान से ही चलेगा। कुछ दिन पहले आपको बता दें, लखीसराय में सरस्वती पूजा के दौरान एक घटना हुई थी। पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर एक शख्स को गिरफ्तार किया था और कथित तौर पर गिरफ्तार व्यक्ति स्पीकर विजय सिन्हा का करीबी है। बिहार में एनडीए सरकार में शामिल विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी ने उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ खड़े हुए किए थे अपने उम्मीदवार।
अब भाजपा में वीआईपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर विचार है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के खिलाफ कार्रवाई अब भाजपा कर सकती है। बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा, हर दूसरे दिन विरोध में आने वाले सहयोगी भाजपा को पसंद नहीं है। इसलिए उन्होंने अपनी ये बात रखी कि बिहार में एनडीए सरकार में शामिल विकासशील इंसान पार्टी, जो कि वीआईपी ने उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ यहां खड़ी हुई थी, जबकि बिहार में वो साथ है। अब भाजपा में वीआईपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर विचार भी हो रहा है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के खिलाफ कार्रवाई अब भाजपा कर सकती है। बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि हर दूसरे दिन विरोध में आने वाले सहयोगी भाजपा को पसंद नहीं। अब अगले विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटी भाजपा गुजरात, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक पर फोकस है। गुजरात, हिमाचल में इस वर्ष, कर्नाटक में अगले वर्ष चुनाव होना है। गुजरात में प्रधानमंत्री ने बड़ा रोड शो करते हुए अभियान शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली तलब किए गए हैं। शुक्रवार को जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ बेहद अहम बैठक होगी। तो बेहद अहम है, जहां 3 अहम राज्य है, चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारी में अभी से भाजपा जुटी हुई है। जहां गुजरात, हिमाचल प्रदेश में इसी साल दिसंबर तक चुनाव होंगे, तो कर्नाटक पर भी फोकस रहेगा। कर्नाटक में अगले साल चुनाव होने। गुजरात में प्रधानमंत्री ने बड़ा रोड शो करते हुए अभियान का आगाज कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को दिल्ली तलब किया गया। इधर शुक्रवार को जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ बैठक हुई। दिल्ली न्यायिक सेवा से जुड़े परीक्षार्थियों को बड़ी राहत है। कोविड-19 के चलते परीक्षा से चूके परीक्षार्थियों को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उम्र के साथ ही परीक्षा तिथि में बदलाव की अनुमति दे दी है। आयु में छूट और परीक्षा तिथि में बदलाव की मांग को स्वीकारा है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना, न्यायमूर्ति हिमा कोहली की खंडपीठ ने बड़ा फैसला सुनाया। विद्यार्थियों द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई थी याचिका। डीजेएस और डीजेएचएस परीक्षा से जुड़ी याचिका के मामले में निर्णय सुनाया था और अब 3 अप्रैल तक हो सकेंगे आवेदन। 24 अप्रैल परीक्षा की तिथि यहां पर निर्धारित की गई है। तो बेहद अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उम्र के साथ ही परीक्षा तिथि में बदलाव की अनुमति यहां पर दी और आयु में छूट और परीक्षा तिथि में बदलाव की मांग को स्वीकारा है सुप्रीम कोर्ट ने। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना, न्यायमूर्ति हिमा कोहली की खंडपीठ ने यह बेहद अहम और बड़ा फैसला सुनाया। विद्यार्थियों द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई थी याचिका। डीजेएस और डीजेएचएस परीक्षा से जुड़ी याचिका के मामले में ये निर्णय लिया है। अब 3 अप्रैल तक हो सकेंगे आवेदन। 24 अप्रैल परीक्षा की तिथि निर्धारित है। इंडियन एक्सप्रेस में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का लेख, चुनाव में सरकार की नीतियों के समर्थन में जनता का बहुमत। विधानसभा चुनावों के नतीजों से मिला स्पष्ट संदेश, राजनीतिक विरासतों को ज्यादा नहीं ढो सकता है नया भारत। ये जनादेश परिवार, जाति, धर्म की राजनीति के खिलाफ है। चुनाव में सरकार की नीतियों के समर्थन में जनता का बहुमत है। इंडियन एक्सप्रेस में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का ये बेहद अहम लेख है, जहां उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों के नतीजों से स्पष्ट संदेश मिला है, राजनीतिक विरासतों को ज्यादा नहीं ढो सकता है नया भारत। ये जनादेश परिवार, जाति, धर्म की राजनीति के खिलाफ रहा। चलिए न्यूज ब्लास्ट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। उसमें आरिफ मोहम्मद खान का इंटरव्यू, मैंने किया था अल्पसंख्यक आयोग का विरोध। इसकी बजाय मानवाधिकार आयोग को मजबूत करने की जरूरत है। समाज के सभी वर्गों से जुड़ा रहता है मानवाधिकार आयोग। देश में लगनी चाहिए समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता से दूर होगा सांप्रदायिक भेदभाव। केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, जिन्होंने ये अहम बात कही। उन्होंने कहा इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू के दौरान कि मैंने किया था अल्पसंख्यक आयोग का विरोध। इसकी बजाय मानवाधिकार आयोग को मजबूत करने की जरूरत है। समाज के सभी वर्गों से जुड़ा रहता है मानवाधिकार आयोग और देश में लगनी चाहिए समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता से दूर होगा सांप्रदायिक भेदभाव। बता दें आपको, केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। अवैध फोन टैपिंग के मामले में देवेंद्र फडणवीस से पूछताछ। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला पर फोन टेप करने का आरोप है और उस समय राज्य के खुफिया विभाग की प्रमुख थी रश्मि शुक्ला। देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री काल में टेप किए गए थे फोन। इस सिलसिले में मुंबई पुलिस ने देवेंद्र फडणवीस से पूछताछ भी की है। तो अवैध फोन टेपिंग के मामले में देवेंद्र फडणवीस से पूछताछ हुई। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस। आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला पर फोन टेप करने का आरोप है और उस समय राज्य के खुफिया विभाग की प्रमुख थी रश्मि शुक्ला। देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री काल में टेप किए गए थे फोन और इस सिलसिले में मुंबई पुलिस ने देवेंद्र फडणवीस से पूछताछ की है। ओडिशा में बीजू जनता दल ने रच दिया नया इतिहास। राज्य के सभी 30 जिलों में बीजेपी के जिला परिषद अध्यक्ष बने हैं।
1 मार्च को नतीजे घोषित हुए। बीजेपी ने 852 में 766 सीटें जीती हैं। जिला परिषद चुनावों में भाजपा को 42, कांग्रेस को 37 सीटें मिली। युवाओं को महत्व दे रहे हैं मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। 30 जिला परिषद अध्यक्षों में 15 की उम्र 40 वर्ष से कम है और एक नया इतिहास यहां पर बीजू जनता दल ने रचा है, जहां 30 जिलों में बीजेपी के जिला परिषद अध्यक्ष यहां पर चुने गए हैं। 1 मार्च के नतीजे घोषित हुए, जिसमें बीजेपी ने 852 में 766 सीटें यहां पर जीती हैं। जिला परिषद चुनावों में भाजपा को जहां 42 तो कांग्रेस को 37 सीटें मिली। युवाओं को महत्व दे रहे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। 30 जिला परिषद अध्यक्षों में 15 की उम्र 40 वर्ष से कम है। केरल के डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को चेताया है। पाकिस्तान से आए हनी ट्रैप के लिए राज्य के अधिकारियों को चेताया है। पाक द्वारा दी गई है भारत को केरल तक नुकसान पहुंचाने की धमकी। डीजीपी अनिल कांत ने दी पाक जासूसों से सावधान रहने की चेतावनी। पड़ोसी देश के संगठनों ने शुरू किया है फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट। अधिकारियों को फंसाने के लिए फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट का सहारा लिया गया। यदि इस तरह की किसी गतिविधि पर संदेह हो तो पीएचओ को सूचित करें, और ये चेताया गया है। यहाँ पर बता दें आपको, केरल के डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को चेताया है और पाकिस्तान से आए हनी ट्रैप के लिए राज्य के अधिकारियों को चेताया है। जैसे कि जानकारी उन्हें मिली, पाक द्वारा दी गई है भारत को केरल तक नुकसान पहुंचाने की धमकी। डीजीपी अनिल कांत ने पाक जासूसों से सावधान रहने की चेतावनी दी है। इधर पड़ोसी देश के संगठनों ने फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट शुरू किया है। अधिकारियों को फंसाने के लिए फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट का सहारा लिया। यदि इस तरह की किसी गतिविधि पर संदेह हो तो पीएचओ को सूचित करें। द कश्मीर फाइल्स। एमपी में पुलिसकर्मियों को मिलेगा फिल्म देखने के लिए अवकाश। अपने परिवार के साथ फिल्म देख सकेंगे मध्य प्रदेश के पुलिसकर्मी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने डीजीपी को अवकाश स्वीकृत करने को कहा है। मध्य प्रदेश सरकार कर चुकी है द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री। मिश्रा ने कहा, फिल्म में अच्छा फिल्मांकन, इसे सभी को देखना चाहिए। फिल्म में 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों को घर से बेघर करने की कहानी है और फिल्म देखने के लिए पुलिसकर्मियों को छुट्टी दी जाएगी। मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मियों को फिल्म देखने के लिए अवकाश दिया जाएगा और ये घोषणा यहाँ पर की है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। उन्होंने साफ कहा डीजीपी को कि अवकाश स्वीकृत किया जाए। मध्य प्रदेश सरकार द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री पहले ही कर चुकी है। देश में 73% बढ़ा सोने का आयात, 842 टन आया। अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 के बीच ये आयात बढ़ा है। इस दौरान 45.1 अरब डॉलर तक सोने का आयात पहुंचा और एक साल पहले इसी अवधि में ये 26.11 अरब डॉलर पर था और बीते 11 महीनों में 842.28 टन सोना भारत आया। होली पर लाट साहब जुलूस के मद्देनजर थी भारी सुरक्षा व्यवस्था और इसके साथ ही था शब बारात और जुमे की नमाज का संयोग। शाहजहांपुर में लाट साहब जुलूस के साथ शुरू होती है होली। शुक्रवार को निकला लाट साहब जुलूस। रास्ते में थी 40 मस्जिदें। जिला प्रशासन ने मस्जिदों को प्लास्टिक शीट से किया कवर। लाट साहब जुलूस की परंपरा है 18वीं सदी में शुरू हुई। होली पर ब्रिटिश लाट को जूते मारने की परंपरा है। एक बैलगाड़ी पर लाट साहब को बैठाकर जुलूस निकाला जाता है। जुलूस में लाट साहब की तरफ जूते चप्पल उछालते हैं लोग। इसे लेकर भारी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर इंतजाम किए गए। पुस्तक मेले में जेब काटती पकड़ी गई अभिनेत्री रूपा दत्ता। हिंदी सीरियल्स और बंगाली फिल्मों की अभिनेत्री है रूपा दत्ता। कोलकाता बुक फेयर में चोरी करते पकड़ी गई रूपा दत्ता। कई हैंडबैग कचरे में फेंकती हुई पकड़ी गई रूपा दत्ता। रूपा दत्ता के पास से 65,700 रुपए नकद बरामद हुए। अदालत में रो पड़ी रूपा दत्ता, खुद को बेगुनाह बताया। लेकिन ये अहम था जब पुस्तक मेले में एक अभिनेत्री जेब काटते हुए पकड़ी गई। अभिनेत्री रूपा दत्ता जो कि हिंदी सीरियल्स और बंगाली फिल्मों की अभिनेत्री हैं, कोलकाता में बुक फेयर में चोरी करते रूपा दत्ता पकड़ी गई हैं। इनके पास कई हैंडबैग कचरे में फेंकती हुई नजर आई। रूपा दत्ता के पास से 65,700 रुपए नकद भी बरामद हुए। अदालत में जब उन्हें पेश किया गया वो रो पड़ी और खुद को बेगुनाह बताया।